Good to see you all. क्षमा करें पिछली बारी मिस हो गया. I missed you more than you can imagine. तो कर्मयोग बस इस आज शायद ख़त्म हो जाएगा. Third chapter, which will be monumental if you're able to do that. और फिर चौथा अध्याय, जैसे मैंने कहा था, the next chapter is superior to this. ऐसा लगता है एक एक पढ़ते जाए. That nothing can top this, only to reveal, only to find out that, oh my God. ऐसे ही fourth chapter में लगेगा जब when we enter the fourth chapter and we start that journey. Wow, it's a wowing effect in the Gita. Like who can come up with such succinct wisdom? इतना crisp, इतना condensed truth, सत्य कौन कोई वचन. और फिर चौथा अध्याय होते होते लगेगा wow, I have satiated, only to find that fifth chapter में और top, and then sixth is unreal. ऐसे करते हैं अलग अलग facets डायमंड के हीरे के देखते रहे चमक रहा, और तो उधर से देखे तो और चमके, इधर से और अलग चमके. ऐसा ये गीता रूपी अमूल्य हीरा, अनमोल रतन. तो क्वेश्चन है, आपने बोला कि आत्मा को बुद्धि में लगा, उसका क्या मतलब है? तो ये ऑलमोस्ट अभी इसी और जा रहे हैं हम चौथे, ये तीसरा अध्याय समाप्त. सो एज पार्ट ऑफ दैट मे बी I'll answer that. आत्मबुद्धि प्रसाद, द शॉर्ट आंसर I'll give now and the long answer is part of this. बुद्धि में जो अभी सब कुछ भरा है, जैसे say this is what I fear. मेरा शॉर्ट आंसर होता ही नहीं कभी. I just haven't learned how to answer in short. तो never mind, it's $1 million question. Why don't we just take that first? Sorry, I was getting a phone call. मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो इनर apparatus है अपना हमारा, अपने आप को भी शरीर मानते हैं. शरीर के बाहर इंद्रियां जो लगी है, the external facing sensors, the sensors that receive whatever is outside of this, who we think we are, body. शरीर से बाहर का माल है ना, जैसे आँखें, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, feeling. That is the layer between us, the real us, and the outer world. And those are the sensors. Indriya, or whatever is taken inside, उनके द्वारा आँखों से जो देखा, कानों से जो सुना, जिह्वा से जो टेस्ट किया, नाक से जो सूंघा, all that is essentially, eyes don't know what the eyes are looking at. The nose doesn't know what it is smelling. Like that, taking all of it, the mind processes it, right? Mind is the processor of all of that information. कि इसका मतलब क्या है? ये मैंने ये जो अभी देखा, ये जो सुना, ये क्या है? So that once that processing happens, ये उपनिषदों में आता है. By the way, the answer to your question comes from the Upanishads also. It's not concocted in my brain. And then it is conveyor belt पे जैसे जाता है factory industry, then it is taken to the next level, जो बुद्धि है. So starting to answer your question, बुद्धि में निर्णय होता है कि what should I do with this the processing that the mind just did of everything that came from the outside. My senses took in everything from the outside, my mind processed it, and the brain now received it. Then the brain does the one of three things with it. या तो कुछ निर्णय करती है, एक्ट करना है कि oh this means आग लगी है, भागो यहाँ से, एक गर्म है, इसको छोड़ो, पकड़ो नहीं. And some sort of a decision is made by the brain. और अगर डिसीजन नहीं ले सकती है तो विश करती है. डिसीजन लेने के योग्य नहीं है तो विश करती है, आई विश दिस, आई विश दैट, विलिंग ना, लाइक इन द फ्यूचर ऐसा हो, वैसा हो, शायद ऐसा होता तो वैसा. एंड देन द थर्ड थिंग इट डज, if not these two, is stores it. Information is stored for future use maybe. The willing, मतलब same as wishing or acting or storing the information. And that whatever is stored settles in the, जिसे हम जो चित्त कहते हैं, हमारे चित्त में बैठ जाता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, ये सुना, उसका मतलब ये हुआ, ऐसा वो ये कह रहे थे मेरे लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था. Whatever the brain finally analyzed and sort of landed on, that sits in my chitta, the innermost sort of the chamber of it. और उधर वही जैसे मैं कभी कभी विनोद में कहता हूँ, इंडिया में हम लोग वो बैलगाड़ी के पीछे सीमेंट कंक्रीट की ट्रक वो लगाते थे, वो मसाला गोल फिरती घूमती रहता था गीला रखने के लिए कंक्रीट को, वो कभी रुकने नहीं देते थे, सो दैट इट एवर रिमेन्स वेट एंड फ्रेश. अभी जो ट्रकें दिखती है हाईवे पे,
ऐसे अंतःकरण उसको घुमाते रहता है, जो अंदर मसाला गया, नेवर लेट्स इट बिकम स्टेल, उसको वही 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 सोचते रहता है। बुद्धि ने जो भी निर्णय किया, वट एवर इज़ मीनिंगफुल, जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी नहीं भूलना चाहिए, जो भी अंत में काम में आएगा, जिसके विषय में सावधान रहना है, ये जो भी बुद्धि ने डिसाइड किया वो अंतःकरण चलने चालू रखता है। और अहंकार, विच इज़ द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहंकार पर्सनलाइजेज इट, मेरा बनाता है। ये मेरा विचार है, ये मेरा धोखा है, ये मेरी प्राप्ति है, ये मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा नहीं करना, ये मेरा जो भी है। सो फिर भी मैं देयर इज होल चैप्टर ऑन दिस, बट आई एम लाइक सेइंग इट वेरी वेरी इन लाइक अ क्रैश कोर्स वे। सो बुद्धि ने जो निर्णय किया वही चित्त में बैठ गया और उसी के दिशा में अपना जीवन चलने लग गया। तो आत्म बुद्धि प्रसाद जा, तो भगवान कह रहे कि देख, आज तक सारा जीवन तेरा बाहर के इंद्रियों से जो ग्रहण किया उसी को प्रोसेसिंग में, उसी का निर्णय करने में, उसी में मतलब निकालने में सारा जीवन निकल गया, एंड विद बीइंग क्लूलेस ऑफ व्हाट्स ऑलरेडी विद इन, हु इज इवन पावरिंग ऑल दीज सेंसेस and the mind and the brain and the chitta and your body that you think you are, whatever is powering, wherever is that consciousness. So instead now stop taking from outside, बाहर से, go within instead. और जो अंदर में ऑलरेडी है उस ये अगर तू बुद्धि में लाएगा, then the buddhi is already designed to make some decisions around it. The buddhi, your intellect, will understand it if you bring it to bear, if you lift it up inside, if you put focus on it. Chetana, apni shakti, the cognition, the power, the consciousness, the awareness, the power to comprehend, the power of comprehension, जिस किसी शब्द से समझते उसके फोकस में अगर अपनी आत्मा को लाए कि who am I really, that I'm not this, I'm not this, I'm not that, I'm not that, so the brain will understand that I'm actually the Atma. And then your chitta उसी में लग जाएगा फिर, I don't want to forget this, कि मैं आत्मा हूँ, this is the most important, this will protect me, this will guard me, I have to guard it and it will guard me. And अहंकार will become about it, that I am, अभी जो लग रहा है शरीर, मन, मदर, ऑफिसर or whatever, वो अहंकार किसके अराउंड हो जाएगा, I am आत्मा। उसमें भी फिर अहंकार आ जाएगा, तो लेकिन वो तारने वाला अहम भाव होगा और सच्चाई को फिर पहली बार स्वीकार करेगा कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्म बुद्धि प्रसाद जा। So that's a short answer, the shortest I could. I know it's unfulfilling. I can what I will do is when we transition from the third chapter to the fourth chapter, maybe next session में, I will slow down and spend more time on this, ताकि और थोड़ा डिकोड कर पाए उसको, क्योंकि वो तो क्वेश्चन तो लोडेड है, उसका आंसर भी बिल्कुल सुपर लोडेड है। और जिस किसी कारण से जहाँ पर भी हमें अगर सच्चाई दिखाई देती है, सत्य को पकड़ लेते एक बार, जैसे चादर के किसी भी छोर को पकड़ ले, कोने को पकड़ ले तो सारी चादर आ सकती है, ऐसे सच्चाई के जिस किसी भी एस्पेक्ट में हम पकड़ पाए तो सो मच बेटर, सो दैट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम ऑन इट। मीनवाइल हियर जहाँ पर हम लोग थे, इवन द 40th श्लोक, देयर आर 43 श्लोक्स इन दिस चैप्टर, 40, 41, 42, 43. So maybe today we don't finish it, but next time we will. यहाँ पर तो इंद्रियाँ, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसके मतलब भगवान कह रहे हैं, you know, this sits in all three places. इंद्रियाँ, मन और बुद्धि. What this is he talking about? Last session में हमने किया था काम एश क्रोध एश. Arjun was asking कि I get it, this makes sense, then what is the problem? Why do I trip? फिर गलत कहाँ से होती? कौन है वो जो दुश्मन, अदृश्य, इनविजिबल एनिमी who trips me? मैं अच्छी तरह से उठती हूँ, चलना शुरू करती हूँ, बीच में आके मेरी टांग को नड़ा देता है फटा फिर से. तो कहते वो कामना जो है, द डिज़ायर, अनकंट्रोल, इनसेशिएबल डिज़ायर, एक के बाद एक, दे आर इनविजिबल एंड देयर इज नो एंड टू देम. वो आते ही रहेगी, कामनाएं, डिज़ायर आते ही रहेगी, एंड दे विल ऑलवेज ट्रिप यू because you'll be distracted. As soon as the next desire comes, your progress has stopped. Instead of going forward
टुवर्ड्स आत्मा, टुवर्ड्स ट्रूथ, टुवर्ड्स द साइट एंड साउंड, सचखंड की ओर की यात्रा के बदले हम लोग अब उधर ही खंडित हो गए, उधर ही रुक गए। अच्छा, पहले ये अपनी वासना को पूरी करनी है, ये इच्छा हो रही है, इससे बात करना जैसा लग रहा है, उन्होंने कॉल रिटर्न नहीं किया उसके, ये तो इसको गिफ्ट देना है या ऐसा होगा बस। वो सारा का सारा कॉन्शियसनेस गॉट ट्रैप्ड मोमेंटरली एंड ड्रैग डाउन, वजन लगा के उसको दबा दिया कि अच्छा पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर से उठने चालू हो गया अपना, फिर से कोई काम ना, उसको बांध दिया पत्थर, वो फिर से सिंक हो गया। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग गए, कामनाओं को बुझाया, पुट आउट द फायर, वो फिर से ऊपर उठने लगे अपने माला की, अपना सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में, अच्छी हवा, ये वो सब अच्छा लगने लग गया। वो गीता पढ़ी तो पता नहीं कौन सा क्यों व्हाट्सएप का मैसेज देख लिया, कोई चैनल लगा दिया और चक्र शुरू हो गया। तो भगवान कहते हैं काम, ये जो कामनाएं हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों में है। इफ़ यू एंगेज योर कॉन्शियसनेस विथ योर सेंसेस, if you make your life about your senses, then invariably you will be trapped, you will be caught up in desires. इंद्रियों से जो भी निर्माण होगा, इंद्रिया is senses, senses, in engaging with the senses, in the end the result will be desire. Desires will end your progress, terminate it. They will trip you, मतलब वो गिरा देंगे फिर से। इसलिए watch for that, don't engage too much in the senses, use the senses, don't be used by them. हमारी आँख है, आँख के हम नहीं है ना, हमारा मन है, मन के हम नहीं है। तो जो हमारी वस्तु है, हम जब चाहे तो उसको उठाए, जब चाहे तब रख दे, जब पावर डाउन कर दे, जब आवश्यक हो जैसा। डोंट लेट दैट पावर अस डाउन, दैट वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट। मन का भी ऐसा ही, इसके विषय में विचार करे, जिसके विषय में विचार करे, ये आत्मा की ताकत ऐसी है। आत्मा इज द पावर ऑफ थिंकिंग, राइट। इसकी ताकत, जिसके विषय में विचार करे उसमें जीवन आ जाए, दैट इज एम्पावर्ड। वी आर एम्पावरिंग बिकॉज वी आर द पावर, द रियल अस, द रियल यू। Wherever you go, whatever you put yourself on will be empowered. Dead matter is empowered because of you. You, I, this is dead matter. This is dead matter. I am empowering it, therefore it looks alive. Same thing with you. So like that, जिस पर भी हमारी दृष्टि पड़े, हमारी आत्मा की, चैतन्य की, चेतना की, उसमें जीवन प्रकट हो जाए थोड़े समय के लिए. As long as we pay attention to it, it's alive. The moment we leave it, it drops dead. And so how powerful is that we are the life-giving force. And how pitiful, कितनी दयनीय अवस्था है कि वो उसको ही भुला दिया हमने, हमारे वास्तविक तत्व को. We became forgetful of that and we became enslaved. स्लेवरी में हो गए, गुलामगिरी में लग गए उनके वस्तुओं के, चीज़ों के. तो भगवान कह रहे, देख इंद्रियों में भी ये काम बैठा है, छिपा हुआ है, the invisible enemy. So don't attach too much to your senses. Don't get उनके साथ चमी बहुत एक न हो जाए. जो दृश्य देख रहे हैं उसके साथ एक न हो जाए, जो सुन रहे हैं उसके साथ एक न हो जाए. Now keep some distance. Be the observer, be the witness. तेल और पानी जब मिक्स करते थे एक नहीं हो जाता. तेल knows how to still stay separated from the water. ना कितना भी तेल को नीचे दबाया तो वो अपना मार्ग निकाल के फिर से ऊपर आ जाएगा, है ना. तो ऐसे ही आत्मा के लिए और बुद्धि में भी. ये बुद्धि मैंने अभी बताया कि जो इंद्रियों से देखा वो मन प्रोसेस करेगा, जो मन ने प्रोसेस किया वो बुद्धि की ओर दे दिया. चलो डिसाइड है, ये लो नेक्स्ट माल आ गया तुम्हारे पास, ये लो नेक्स्ट माल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद इट, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद इट. ओ तो अदरवाइज थॉट फ्री ब्रेन हैज़ नो वर्क टू डू, नथिंग टू डिसाइड, ट्रैंक्विल. सो इसलिए वो अर्जुन ने पूछा कि कहाँ देखो मेरे शत्रु को, कहाँ बैठा है जिसके कारण मैं दीनहीन हो जाता हूँ. तो तेरे मन में, तेरे इंद्रियों में और तेरे बुद्धि में ये बैठा है. इसके लिए वॉच कर. आई थिंक व्हाट आई वांट टू डू इज जस्ट एटलीस्ट रीड द हिंदी पार्ट ऑफ इट, ऑफ द रेस्ट ऑफ द 3 श्लोक्स एंड देन विल फिनिश. इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक
नियंत्रण मिला. काम usually is associated only with the passion of the flesh, like the carnal. लेकिन यहाँ पर कामना, that's one aspect of that. The desire for flesh is only one desire, but desires are millions. है ना, desires के लिए तो कोई अंत नहीं है. कितनी कितनी वासनाएं हो सकती, इसका कोई अंत नहीं है. विकृति, deformity, कि they endless have formation. जो हम एक पदार्थ खाते हैं, कोई अच्छा सा भोजन बनाते हैं, वो उसका ठाकुर जी के सामने नैवेद्य दिखाया अथवा नहीं भी दिखाया, लेकिन what we eat, the Epicurean taste, वो जो culinary expertise, इतनी रेसिपी लगा के एक पदार्थ बनाया, परफेक्ट बनाया, एग्जैक्ट बनाया, और वो खाने के लिए एक, लेकिन जब वो सड़ने लग जाए तो उसके 10,000 डिफॉर्मिटीज़ हो जाए, विकृत हो जाए, या तो वो उसको मोल्ड लग जाए, या बैक्टीरिया हो जाए, या फंगस हो जाए, और नीचे वो लिक्विड हो जाए, उसका कुल और कुछ कड़क बन जाए. Who knows how many forms it will take when it deforms. But when in the right form, there is only one form that we can accept. Everything other than is just विकृति. ऐसे ये सारी विकृतियाँ है. अपने आत्मा के विषय के ज्ञान को छोड़कर बाकी सारा ज्ञान are just different forms of विकृति. ये फंसाने वाली है, ये पकड़ने वाली है, ट्रैप करने वाली, स्लो डाउन करने वाली है, और फिर से नीचे लेने वाले. हमें ये मनुष्य जीवन उत्थान के लिए मिला, ऊपर उठने के लिए मिला. इस देह से उड़ा जा सकता है, लेकिन बार बार कामनाएं हमें, कामना इज लाइक द बैगेज, दैट कितना बैगेज ढो पाएंगे. सो इसलिए भगवान कहते हैं कि फर्स्ट थिंग यू शुड वॉच, रियली फर्स्ट पुरुषार्थ यू शुड डू, इट्स वॉच योर डिज़ायर्स. As you become watchful of desires, then you will understand that they're not good, they're not right. You don't need all that. There's only one small little something that you need, and the thousands other forms of it you really don't need. As you become watchful, you'll also become careful. In the process, you'll separate yourself. There will be distance between you and your desires. Obsession नहीं रहेगा, फिर कंपल्सिव नहीं होगा बिहेवियर, ये मिलना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. What if it doesn't? फिर लगेगा कुछ नहीं होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. आज तक नहीं हुआ तो कुछ नहीं, बिगड़ा नहीं. अचानक शक्ति का संचय प्राप्त होगा, और from nowhere you'll be able to see a stream, a fountain of power within yourself, that you will not become fretful, you will not be miserable, anxious, नर्वस नहीं हो जाएगी, देखने लगेगी. लेकिन उसके लिए थोड़ा स्लो डाउन, शांत होकर सेपरेट करना पड़ेगा डिज़ायर से. दैट नो, आई एम नॉट माई डिज़ायर, आई एम नॉट गोइंग टू लिव ओनली टू फुलफिल माई डिज़ायर. आई डोंट केयर, इट डजंट मैटर टू मी वेदर माई डिज़ायर्स आर फुलफिल्ड और नॉट. माई डिज़ायर्स डू नॉट डिटर्मिन वेदर आई एम हैप्पी और नॉट. मेरे आनंद का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, ये पूरा होगा या नहीं होगा उसके लिए. मेरा आनंद मेरे काबू में, ऐसे ही है अंदर में. ये जितना करेगा शक्ति बढ़ते जाएगी, और जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी और डिज़ायर्स कम होती जाएगी, और जितनी डिज़ायर कम हो जाएगी और शक्ति बढ़ेगी. भगवान करे इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर, यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं. इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है. जो आपने पूछा आत्मा में बुद्धि को लगा, और मैंने कहा कि इस श्लोक के अंत में जनरली स्पीकिंग इट आंसर्स योर क्वेश्चन लाइक द लास्ट पार्ट ऑफ द श्लोक. मेरे भाई को जब इंडिया में कोरोना हो गया था, मेरा सगा छोटा भाई, ही वाज द फर्स्ट वन इन द सिटी ऑफ नागपुर. द सिस्टम वाज नॉट सेट अप फॉर इट, नोबडी न्यू व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड ही वाज रियली स्ट्रगलिंग बैडली विद इट. 104 डिग्री टेम्परेचर फॉर लाइक एक हफ्ता हो रहा था. ही वाज नॉट, and he would listen to I would talk about the Gita, and I asked him to really concentrate on the last 2 shlokas of the Gita, 3rd chapter of the Gita. ये जो अभी मैंने ये पढ़ रहा हूँ, last 2 verses of the 3rd chapter of the Gita, I would recite for him, I would explain to him, and then I would ask him to concentrate on that, like who he is. He came out of it, he's fine, he fully recovered, everything good. And then because he was the first one, he was on national TV, all the radio channel, like everybody wanted to interview him, take pictures and all that. Celebrity ho gaya overnight.
And then he would keep saying, I talked to my brother, and the last two verses of the third chapter of the Gita, छोटा भाई है ना, it's cute. Oh, तो repeat करता है. He said, that is what gave me the power. That is what empowered me. तो ऐसा क्या है इसमें? कि इसमें भगवान कहते हैं, I'll read it, the last श्लोक. इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस कामना रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल. दिस स्टील, ये अभी भी पढ़ने के बाद भी लगता है, इट्स लाइक कोड लैंग्वेज लगती है. एसेंशियली व्हाट, to simplify what God is saying is, hey Arjun, look, don't be afraid, don't become miserable, don't be anxious, don't be confused, don't turn negative, because you actually are Atma. Inferior to you, inferior मतलब तेरे से कम, कितनी कम, तेरे सामने कोई जिसकी गिनती ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है तेरे सामने, तो जो आत्मा रूप इज़ योर इंटेलेक्ट, तेरी जो विचार करने की शक्ति है, ब्रेन, भेजा, खोपड़ी जिसे कहते हैं, वो है. और उससे कई कमज़ोर, उसके सामने जिसकी कोई कीमत नहीं, इन्फीरियर टू इट, वीक कंपेयर टू योर ब्रेन इंटेलेक्ट, इज़ योर माइंड, मन. और उससे भी इन्फीरियर, पावरलेस आर योर सेंसेस, इंद्रियां हैं. And if you reverse that course, right now you're stuck in the body. लग रहा है कि शरीर है, शरीर को रोग हो गया, कोरोना वायरस हो गया, बुखार कम नहीं हो रहा, मेरे को बुखार आ रहा है, मैं गर्म हो गया, मैं वीक हो गया, मैं मर रहा हूँ, मेरे को कुछ खाना पीना नहीं हो रहा है, मेरा शरीर दर्द दे रहा है. तो भगवान कहते हैं, तेरे इंद्रियों से जो फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है इन सेंसेस से, इससे so much more is your mind. And so much more than the mind is your intellect, your power to rationalize, sense-making ability is so much more empowering. And I cannot even describe for you, God is saying, how much more there is to you, Arjuna, than all of these three. So the only thing, Purusha, the only task here is somehow or other realize the truth about your identity. About who you really are. अभी जो मिस आइडेंटिफाई हो गया, बड़ी महा गलती हो गई, महापाप कहा शास्त्रों में. इसे सबसे बड़ा पाप कहा. चोरी को, खून करने को, दारू पीने को, नॉन वेज खाने को इतना पाप नहीं कहा, सब मिलके इतना पाप नहीं कहा शास्त्रों में, हमारे हिंदुओं के शास्त्रों में. इसको सबसे बड़ा पाप कहा. सबसे बड़ा पाप अपने आप को शरीर माना बैठे. पाप कहाँ से आता? अज्ञान से आता. अभी जो मैंने कहा था, ध्यान के समय जो कभी न विचारे ज्ञान है ना, तो काम क्रोध और मोह की जब लगी मन में खान, तुलसी मिटे न वासना. वासना मतलब कामना. बिना विचारे ज्ञान, unless and until we use a rational thinking, सब कचरा बाजू करके ध्यान के समय रोज थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह फोकसिंग द थॉट्स ऑन आइडेंटिफाइंग आवर रियल सेल्फ. ये जो मिस आइडेंटिफाई हो गए शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, कि मैं मन हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं शरीर हूँ, ये बड़ी गलती हो गई. इसको अभी पहले इसको तोड़ अलग करना है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, नो, आई एम नॉट माई माइंड. और उसके बाद फिर जो सच्चाई है उसके साथ इधर से निकाल के इधर प्लग इन करना है, रीआइडेंटिफाई करना, ये मैं हूँ. एंड देन पावर का सोर्स, देन एक्सपीरियंस द पावर दैट फ्लोज थ्रू यू एंड विद इन यू एंड व्हाट यू एक्सपीरियंस थ्रू इट. इसलिए भगवान कह रहे अर्जुन, ऐसे नहीं जाएगा. तेरा जो दुख जो है, राइट नाउ यूर थिंकिंग यू आर दिस बॉडी, दिस तेरा योर ग्रैंडफादर in front of you is a body, your guru in front of you is a body, and you're asking me, ये body तो रहेगी ना, वो body तो रहेगी ना, I don't want to kill this body, I'm not asking you, you're just not body, I'm asking you to focus on the truth, and the truth shall prevail, truth must prevail. Goodness, uniformity, righteousness, धर्म हमेशा जीतेगा ही. अर्जुन और नु अर्जुन था इसलिए धर्म की जीत नहीं हुई, भगवान थे, ठाकुर जी थे इसलिए धर्म की जीत हुई, है ना. आगे चल के 10वें 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं 11th chapter,
Go leave if you want to leave. I've already done this. ये धर्म की रक्षा होगी with or without you. I'm asking you to stay put so that you will be credited with it also. So I think we're coming up on time in a couple of minutes. I will go over these two in details. Essentially, what I told my brother is what I'm telling you, my brother and sister, my mother and my father, कि ये दो श्लोकों पर विचार करें. थोड़े से कोड लैंग्वेज जैसे लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन बड़ा सा सिंपल है. द लॉर्ड इज आस्किंग अस टू create space to think that the senses themselves are very strong and superior. हमारी इंद्रियां बड़ी बलवान है, लेकिन इंद्रियों से ज़्यादा बलवान हमारा मन है. मन से और ज़्यादा बलवान हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से कई सबों से कई ज़्यादा बलवान जो हम वास्तविक है आत्मा है. तो हम क्यों इनके खींचे जाए, क्यों इनके सामने दीनहीन हो जाए. हम इनको शक्ति दे रहे हैं, ये इंद्रियों को तो जला देते हैं, मुट्ठी पर राख हो जाती है इनकी. जब इनमें से हम निकल जाते तो, हम चले जाते तो इस शरीर को इसकी कोई कीमत नहीं होती. जब मैं निकल जाऊँ इसमें से तो ये कुछ नहीं, ये लोली कुछ नहीं कह पाएगी. जब तक मैं हूँ तो उस मैं को भुला दिया जो इन सब को चला रही है, ताकत दे रही है, सोचने की शक्ति दे रही है. उस मैं को भुला दिया और ये इस झंझट मोल ली अपनी. तो भगवान कह रहे बस उस वास्तविक मैं में स्थित हो जा, तो तेरे अभी पता चलेगा तू और मैं अलग नहीं. क्योंकि मैं, भगवान कह रहे ही वो मैं तेरे में मैं बन के बैठा हूँ. अनुभव हो जाएगा कि मैं भगवान से अलग नहीं और भगवान मेरे से अलग नहीं. हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि दो है ही नहीं, वो एक ही बैठा है. मैं अपने आप को शरीर मान रही थी, इसलिए मुसीबत थी. जब से शरीर का चिंता छोड़ दी, मन की चिंता छोड़ दी, इंद्रियों की, जिधर तुमको जो करना है, मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं है. मैं अपने प्रभु की हूँ और प्रभु मेरे है, वो मेरे अंदर है, वो मैं उनमें हूँ. हम दोनों एक ही है, दो है ही नहीं, मैं हुई ही नहीं, वही है. इन विचारों से चुट्टी होती जाएगी, या तो फिर ज्ञान द्वारा. सो आई विल पिक दिस अप नेक्स्ट टाइम. इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, रियली गुड क्वेश्चन. It's something that everyone should understand properly. So I think when we finish, like I said before, when we finish this and enter the 4th chapter, I will not start the 4th chapter until we fully decode and unpack that. Stop here. Great to see you all. Jai Shri Krishna. Thank you for receiving me again.